Hello everyone, welcome to BSA Jaipur YouTube channel. Today we will take a short revision of chapter 6 molecular basis of inheritance of class 12. There are two types of nucleic acid present in living organism. First, DNA, deoxyribonucleic acid, and second is RNA, ribonucleic acid. DNA act as a genetic material in most of the organism. RNA also act as genetic material, but in some viruses, these viruses are called retroviruses. Next, the DNA. What is DNA? DNA basically deoxyribonucleic acid. But what is this is a polymer of deoxyribonucleotide. DNA क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एक पॉलीमर, एक चेन है, जो न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है, वो है हमारा डीएनए की, जो एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन का. ठीक है. और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो बेस पेयर. जो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है इज ऑल्सो कॉल्ड अ बेस पेयर. जो हम न्यूक्लियोटाइड है उनको हम बेस पेयर के भी जानते हैं. जो लेंथ है, जो यूजुअली जो हम लेंथ आइडेंटिफाई करते हैं डीएनए की, इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन, जो डीएनए है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल, दिस इज द डीएनए. ठीक है. दीज आर बेस पेयर्स. ओके, दीज आर बेस पेयर्स. And this is the difference between two base pair. For example, this is 1 fit. Okay, this is the difference between two base pairs. Okay, now what is the length of DNA? So the length of DNA it means कि जो total distance है of base pair. For example, this is 1 fit, 2 fit, 3, 4. तो जो total difference है, जो total distance है of base pairs की, this is the length of DNA. तो what is the total distance? 1, 2, 3, 4 feet. तो this is the 4 feet of distance between base pair. जो total distance है base pair की कितनी है? 4 feet. It means the जो length of DNA is क्या है? 4 feet. जो length of DNA वो भी हमारी क्या होगी? 4 feet. Now, nucleotide, basically nucleotide consists of nitrogen base, pentose sugar and phosphate group. कि जो न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली वो किससे है कि नाइट्रोजन बेस पेयर से, पेंटोस शुगर से एंड फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है. एंड नाइट्रोजन बेस पेयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स, प्यूरिन एंड pyrimidine. Purine, this is a double ring structure. For example, this is the double ring structure where and nitrogen is present in this double ring structure. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. नंबर कर दिया हमने कार्बन्स को. अब where nitrogen is present, तो in purine, तो nitrogen is present on the 1, 3, 7 and 9. On this position, 1 पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 3rd नंबर वाली पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 7th नंबर वाली पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड 9th नंबर वाली पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है. इन pyrimidines, this is the single ring structure. ये कैसा है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है. देयर आर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओनली 1 and 3. देयर आर ओनली 1 and 3rd नंबर वाली पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन pyrimidines. एंड प्यूरिन्स पे कहाँ प्रेजेंट है? 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 7 पे एंड 9th नंबर पे हमारे प्यूरिन में प्रेजेंट है नाइट्रोजन. एंड द एग्जाम्पल ऑफ adenine and guanine. Adenine and guanine is the example of purine. Cytosine, uracil and thymine. These are the examples of pyrimidine. And cytosine
साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए दोनों में क्या प्रेजेंट है, साइटोसिन, बट यूरेसिल इज ओनली प्रेजेंट ऑन द आरएनए, यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट है, ओनली आरएनए पे, एंड थायमिन इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द डीएनए, थायमिन कहाँ प्रेजेंट है, ओनली ऑन डीएनए पर ही थायमिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज पेंटोस शुगर, there are two types of pentose sugar, ribose and deoxyribose pentose sugar. This is the structure of ribose sugar. This is the structure of pentose sugar. How many carbons present in pentose sugar? 1, 2, 3, 4, 5 carbons present in pentose sugar, but 4 carbons present in the ring. That's why it is called Furnose ring type structure. कि ये कौन सा है, Furnose type of ring structure, कि because 1, 2, 3, 4 carbon present in the ring. Basically 5 carbon present in the ribose sugar, but 4 carbon present in the ring. That's why it is called Furnose type of ring structure. And this is the cis form because both OH group present on the top. So this is the cis form. Okay, this is the cis form. And this structure is the beta ribose. This is the structure of beta ribose sugar. But when we remove oxygen from the, for example हमने 1, 2, 3, 4, 5 मार्किंग कर दी, ओके, तो when we remove oxygen from the second position, तो it convert into 2 beta dioxyribose. ओके, कि जब हमने इसमें से फर्स्ट दिस इज बीटा राइबोस शुगर, तो पहले ये क्या थी, बीटा राइबोस थी शुगर, बट व्हेन हमने जब इसमें से सेकंड नंबर वाली पोजीशन से ऑक्सीजन को क्या करा, रिमूव कर दिया, तो नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू 2 बीटा डाईऑक्सीराइबोस शुगर, एंड दिस बीटा राइबोस शुगर प्रेजेंट ऑन द RNA. This is present on the RNA, and deoxyribose it is present on the DNA. ये वाली कहाँ पे प्रेजेंट है, DNA पे, एंड राइबोस कहाँ पे प्रेजेंट है, RNA पे. Now phosphate group. Phosphate group, what is the formula? PO4 3 minus. This is the phosphate group. Phosphate group basically this is the negative. Okay, that's why तो जो बेसिक DNA बेसिकली क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई DNA इज नेगेटिवली चार्ज. ओके, तो एंड इट कन्वर्ट टू पॉजिटिव आयंस. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड. दिस इज द पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप. ये क्या है हमारा, फॉस्फेट ग्रुप, और ये पेंटोज शुगर, और ये है नाइट्रोजन बेस. तो नाइट्रोजन बेस पेयर एंड पेंटोज शुगर अटैच टू ईच अदर विद द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ओके, बीटा पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, तो these are attached with each other with the help of N-glycosidic linkage, and phosphate group and pentose sugar they are attached with each other diester bond से, कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर, ये किससे अटैच है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से अटैच है. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दिस इज द डायग्राम ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये किसका था, हमारे वन न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम था। नाउ दिस वन न्यूक्लियोटाइड व्हेन each combined to each other they form a polynucleotide chain. This is the polynucleotide chain। और ये हमारी polynucleotide chain है, इसके अंदर ये फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारी पेंटोज शुगर है और ये है हमारा बेस पेयर। ओके, नाउ दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, बेस पेयर। ओके, तो दिस इज द polynucleotide chain। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेसिकली डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, कि बेसिकल जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। और जो फीचर्स है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ डीएनए, तो डीएनए इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कि जो डीएनए है वो जनरली किससे मिलकर बना है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये देखिए, ये हमारी वन चेन है, ये पूरी वन, एंड दिस इज द सेकेंड। तो दीज आर द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड chain। Okay, now second, and in which backbone is made up of sugar, phosphate and base project inside, कि जो हमारी इसके अंदर ये जो बैकबोन है, दिस इज द बैकबोन, कि ये हमारे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये बैकबोन है, ये किसकी बनी हुई है, हमारे पेंटोज शुगर की, फॉस्फेट ग्रुप की, कि ये यहाँ पे क्या क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर। एंड द बेस पेयर, जो बेस पेयर है वो कहाँ है, इनसाइड, अंदर की तरफ, कि बाहर आउटर कवरिंग कौन सी है, पेंटोज शुगर की है, और इनर साइड में हमारे क्या है, बेस पेयर्स प्रेजेंट है। ओके, टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी फॉर 1 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये देखिए, ये वाला हमारा है 5 to 3, कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, जो ऊपर वाली जो बेस पेयर है वो जो चेन है वो हमारी कहाँ से है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो नीचे वाली है हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दिस इज द एंटर पोलैरिटी, कि ये जो है डीएनए के स्ट्रक्चर की एंटर पोलैरिटी कैरेक्टर है। The base in two strands are paired through hydrogen bond, कि इसके अंदर जो ये जो बेस पेयर्स हैं ये किससे अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है हमारे बेस पेयर्स के बीच में, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन अटैच विद द हाइड्रोजन विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, कि जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है किसके बीच में, एडेनिन एंड थायमिन से। एंड साइटोसिन एंड गुआनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन इनमें कौन सा है, हमारा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है एडेनिन एंड साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में। ये है हमारा गुआनिन और ये हमारा साइटोसिन, और एडेनिन एंड थायमिन के बीच में हमारा क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, कि इट मीन्स कि एडेनिन अटैच विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थायमिन एंड गुआनिन अटैच विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द साइटोसिन। Now two chains are coiled in right-handed fashion. The pitch of helix is 3.4 nm, कि जब ये जो है हमारा जो टू चेन कॉइल है, कि जो चेन है हमारी ये डायग्राम के अंदर, कि ये जब चेन कॉइल होती है तो ये कॉइलिंग क्या है हमारी, कि इसमें जो कॉइलिंग है उसको हम क्या कहेंगे, पिच ऑफ हेलिक्स। कि फॉर एग्जाम्पल हम पिच ऑफ हेलिक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पिच ऑफ हेलिक्स निकलेगा कि जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट है इन वन टर्न, एक जब टर्न होगा, एक जो कॉइल होगा टर्न होगा, उसमें कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं इन वन टर्न, इनटू मल्टीप्लाई बाय बेस पेयर्स, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स के अंदर, कि जो बेस पेयर्स हैं उन टू बेस पेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कि उससे हम निकालेंगे। कि फॉर एग्जांपल हम हमारा लेते हैं बीटा डीएनए,
ओके, बीटा डीएनए के अंदर हम कितने पिच ऑफ हेलिक्स है उसको हमने यहाँ पे है 3.4 Nm, तो ये कैसे आया, तो फॉर बीटा डीएनए अब इन वन टर्न हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन वन टर्न, 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन वन टर्न। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, तो जो टू बेस पेयर्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.34 Nm, कि जो टू बेस पेयर्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.34, तो दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्ट इनटू 3.4 Nm। तो पिच जो निकली है हमारी, जो पिच ऑफ हेलिक्स है वो कितनी है 3.4 Nm, की जो पिच ऑफ हेलिक्स है वो कैसे निकाली हमने 3.4 Nm, की जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन वन टर्न इनटू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि सेंट्रल डॉगमा, की जो सेंट्रल डॉगमा है, दिस इज द 1 मार्क क्वेश्चन, ये किसने प्रपोज किया था, फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डॉगमा। एंड व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा, इट मींस कि डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए व्हेन डीएनए रेप्लिकेट इट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, व्हेन डीएनए ट्रांसफर इनटू आरएनए इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से क्या बन रहा है प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से क्या बन रहा है डीएनए, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, व्हेन डीएनए से क्या बनेगा आरएनए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से क्या बन रहा है प्रोटीन, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, कि ये वाला प्रोसेस क्या है हमारा ट्रांसलेशन। नाउ अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कि जो डीएनए हेलिक्स है वो कैसे पैक होता है, तो बेसिकली इन वी नो दैट कि इन अ प्रोकैरियोटिक जो डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, दैट्स व्हाई तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो किससे अटैच होगा, सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से in prokaryotic, but in eukaryotic we have a जो पॉजिटिवली चार्ज हमारे क्या है हिस्टोन प्रेजेंट है, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए अटैच या रैप्ड अराउंड विद द पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, कि ये जो डीएनए रैप होता है हिस्टोन ऑक्टोमर से तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोसोम, कि जब हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए व्हेन नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर, दैट इज कॉल्ड या दैट इज फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, कि वो किसका फॉर्म कर रहे हैं एक न्यूक्लियोसोम का। एंड इन न्यूक्लियोसोम बेसिकली 2 एमिनो एसिड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियोसोम, दीज आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यूक्लियोसोम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का। ये देखिए कि ये हमारा ये क्या है, दिस इज द हिस्टोन ऑक्टामर। इन हिस्टोन ऑक्टामर विच इज प्रेजेंट H2A, H2B, H3 and H4. These are the 4 H2A, H2B, H3 and H4. These are present on the histone octamer, and this is the H1 histone protein. ये H1 क्या है हिस्टोन प्रोटीन है, और ये सारे हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वन हिस्टोन ऑक्टामर जब सर्कल करता है तो उसके अंदर 20 बेस पेयर्स 200 बेस पेयर्स की सिंगल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स, कि जो एक सिंगल न्यूक्लियोसोम इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं 200। फॉर एग्जांपल कि दिस इज द ये है हमारा न्यूक्लियोसोम, ठीक है, तो इसकी जो वन कॉइलिंग है इस कॉइलिंग के अंदर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है 200 बेस पेयर्स
प्रेजेंट है। तो इन अ सिंगल कॉइल की 200 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। और जब ये न्यूक्लियोसोम इस तरीके से पूरे एक चेन बनाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ओके, नाउ द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि हम कह रहे हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो साइंटिस्ट कौन थे? ग्रिफिथ इन 1928 कंडक्ट अ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने 1928 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके थ्रू उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, हम लिखी ग्रिफिथ 1928। जो उनके एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल था, व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, कि ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल था। उन्होंने क्या किया था? ट्रांसफॉर्मेशन किया था। किस पे किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई पे, जो दिस इज द बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है फॉर न्यूमोनिया के लिए। दिस इज द बैक्टीरिया एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया। तो उन्होंने इन ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए थे। एक था हमारा आर स्ट्रेन और एक था हमारा एस स्ट्रेन। ओके, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन इज विरुलेंट, कि सॉरी आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट, कि जो आर स्ट्रेन था वो विरुलेंट नहीं था, एंड एस स्ट्रेन इज विरुलेंट। What is the meaning of virulent and non-virulent? It means virulent, it means कि mucus polysaccharide coat, mucus polysaccharide coat present on virulent. It means S strain पे क्या present था? Mucus polysaccharide coat present on S strain. That's why it is called virulent. But non-virulent, it means कि there is no mucus polysaccharide कोट इज प्रेजेंट ऑन आर स्ट्रेन। तो अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस। उन्होंने एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। दे ऑब्जर्व दैट माइस डाइड। ही ऑब्जर्व माइस क्या हुआ? डाइड हो गया, डाई हो गया। आफ्टर दैट व्हेन दे चूज आर स्ट्रेन, ओके, आर स्ट्रेन व्हेन इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस लाइव, कि माइस क्या कर रहा था? सर्वाइव कर रहा था। इट मीन्स कि एस स्ट्रेन इज विरुलेंट, दैट्स वाई कि जो माइस क्या हुआ? वो डाई हो गया। एंड आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट, तो माइस क्या हुआ? सर्वाइव कर गया, लाइव कर रहा था। अब फिर उन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन हीट किल, एस स्ट्रेन को क्या किया? हीट किल किया। तो उससे क्या हुआ कि जो उसका विरुलेंट था वो खत्म हो गया और वो इंजेक्टेड इनटू माइस, तो माइस क्या किया? सर्वाइव कर गया। कि उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल किया तो माइस क्या हुआ? सर्वाइव कर गया। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि एस स्ट्रेन हीट किल विथ आर स्ट्रेन। ओके, कि हमने पहले किया कि आर स्ट्रेन से तो क्या हो रहा है? माइस सर्वाइव कर रहा है। फिर हमने एस स्ट्रेन हीट किल, जो हमने हीट किल में क्या हुआ था? माइस सर्वाइव किया था। इट मीन्स आर स्ट्रेन में भी माइस ने सर्वाइव किया था और हीट किल एस स्ट्रेन में भी माइस ने सर्वाइव किया था। दोनों को उन्होंने ज्वाइन करके एस स्ट्रेन हीट किल प्लस आर स्ट्रेन लाइव। तो जब उन्होंने इसको इंजेक्ट कराया माइस में, तो माइस क्या हुआ? डाई हो गया। माइस क्या हुआ? डाई हो गया। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि इसके पीछे क्या रीजन है कि जब एस हमने सिंपल आर स्ट्रेन लिया था तब तो माइस सर्वाइव कर गया, और जब हमने सिंपल एस स्ट्रेन हीट किल लिया था तब भी माइस सर्वाइव कर गया। तो जब हमने दोनों को मिला क्या कि एस स्ट्रेन हीट किल और आर स्ट्रेन को जब हमने मिलाया तो माइस क्या हो गया? डाई हो गया। तो अब इसके पीछे क्या रीजन था? तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि इसके पीछे ये था कि जो पहले जो आर था वो नॉन विरुलेंट था, नाउ आर बिकम्स विरुलेंट। अब जो आर है वो क्या हो गया?
विरुलेंट हो गया। और वो आर विरुलेंट क्यों हुआ? ड्यू टू द जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल के कारण जो आर था वो क्या हो गया? नॉन विरुलेंट से कन्वर्ट हो गया विरुलेंट के अंदर। तो ये जो उनका प्रिंसिपल था कि जेनेटिक मटेरियल जो है हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो हमने किया था वो यही था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ही रीजन है माइस के डाई होने का। नाउ रेप्लिकेशन। Replication of DNA. Replication, what is the meaning of replication? It means कि when DNA make their copy, that is called replication. कि जो हम DNA कॉपी बना रहा है अपनी कॉम्प्लीमेंट्री, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? रेप्लिकेशन। एंड रेप्लिकेशन के अंदर दिस इज अ सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव? कि जो हमारे न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म होता है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है। इस डीएनए से जो हमारे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहे हैं, तो न्यू स्ट्रैंड्स में फर्स्ट स्ट्रैंड इज अ पेरेंटल स्ट्रैंड एंड सेकेंड इज न्यू स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, कि इसके अंदर हमारा एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड कैसा है? न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ओके, नाउ व्हाट हैपन इन डीएनए, कि इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट एंजाइम विच इज टोपोआइसोमरेज, कि सबसे पहले टोपोआइसोमरेज ये क्या करेगा? टोपोआइसोमरेज का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज? ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, कि ये क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। कि ये जो इस तरीके से डीएनए था, अब इसके अंदर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन था उसको क्या कर रहा है? ये ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको खोल रहा है कि ये टोपोआइसोमरेज अटैच होगा और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। सेकेंड है हमारा हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम वो ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को विच इज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियो बेस पेयर्स के बीच में जो प्रेजेंट है, जैसे ये एडेनिन है, सबसे पहले अटैच हो गया हमारा टोपोआइसोमरेज। उसके बाद डीएनए हेलिकेज अटैच हुआ। डीएनए हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज ने क्या करा? अनबाइंडिंग कर दी, पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक डाउन हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो गए। अब यहाँ पे हमारे जुड़ेंगे SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है उनका क्या फंक्शन है? वो वापस हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बन जाएंगे उनको रोकने का, प्रिवेंट करने का काम करेगा। कि क्या कई बार क्या वापस हाइड्रोजन कॉइलिंग वापस शुरू होने लग जाती है, कि यहाँ से जैसे हमने अनकॉइल किया तो कॉइलिंग वापस शुरू होती है, तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है ये यहाँ पे अटैच होगा और उसकी अनबाइंडिंग को रोकेगा। अब यहाँ पे जो हमारे हैं RNA पॉलीमरेज आके अटैच होगा। RNA पॉलीमरेज ऑलवेज अटैच विद 3' एंड पे RNA पॉलीमरेज अटैच होगा। फिर RNA प्राइमर अटैच होगा। RNA प्राइमर अटैच होके हमारे 2 स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होगा। कि जैसे RNA प्राइमर हुआ तो एक स्ट्रैंड जो फॉर्म होगा वो तो हमारा कंटिन्यूस स्ट्रैंड फॉर्म होगा और एक जो स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है वो हमारा फ्रेगमेंट्स में फॉर्म होगा। तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज कॉल्ड, जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है उसको हम क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। एंड जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है उसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड it means continuous strand and lagging strand it means discontinuous strand। और these fragments are called ओकाजाकी fragments। ये fragments क्या कहलाएंगे? ओकाजाकी fragments कहलाएंगे। अब ये fragments जो यहाँ पे ये जो बीच में गैप है, कि जैसे ही हमारे यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा 5' to 3' और ये हमारा 3' to 5' है,
ठीक है। अब यहाँ से जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है कि जैसे अब ये यहाँ से जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया। फिर ये यहाँ से वापस कि आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है 3 to 5 मूव कर रहा है, तो एक तो ये यहाँ से पूरा कंटिन्यूस स्ट्रैंड फॉर्म हो गया। अब यहाँ से जैसे ये यहाँ पे है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये इतना सा पार्ट बन गया, फिर वापस अटैच हुआ, ये बना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, फिर ये अटैच हुआ, फिर ये बना 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये जो इस तरह से डिसकंटिन्यू जो फ्रेगमेंट है ये सारे फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और ये अटैच होंगे बाद में डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो डीएनए लाइगेज क्या एंजाइम है जिसके थ्रू ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वापस क्या होंगे अटैच होंगे, और उससे फिर जब पूरे ओकाजाकी फ्रेगमेंट अटैच हो जाएंगे तो हमें 2 डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इसमें देखिए कि इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हमने एक डीएनए लिया कि वो डीएनए हैवी डीएनए है N15, बेसिकली हमने NH4Cl, ये हमारा क्या है मीडियम है NH4Cl। NH4Cl के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है N14, बट इससे हमने थोड़ा सा हैवी लिया है तो दिस इज कॉल्ड N15। तो ये जब हमने हैवियर लिया तो ये हमारा कौन सा था N15 डीएनए। अब ये N15 डीएनए हमने किसके अंदर डाला NH4Cl के अंदर, कि ये जो हमारा मीडियम है ये मीडियम कौन सा है हमारा NH4Cl, ये मीडियम हमारा है NH4Cl। अब इस मीडियम के अंदर जब हमने N15 डीएनए डाला तो वो क्या करेगा ग्रो करेगा, ग्रो करके जब हम इस N15 डीएनए को टाइम टू टाइम अलग करके देखेंगे तो हमने इसको आफ्टर 20 मिनट्स हमने इसको ऑब्जर्व किया। तो आफ्टर 20 मिनट्स जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि मान लो हमने जो 2 डीएनएस लिए थे कि N14 एंड N15, तो ये यहाँ पे जो बैंड हमें मिल रहा है ये बैंड है N15 का, और जो N14 का बैंड मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा N14 का बैंड है। तो अब जब हमने 20 मिनट्स के आफ्टर जब न्यू वापस निकाल के उसको नेक्स्ट इसके अंदर डाला, ये भी कौन सा था NH4Cl मीडियम था, इसी के अंदर वापस ग्रो करवाया, तो हमने देखा कि इसके अंदर जो हमारा N15 का जो बैंड बन रहा था वो यहाँ बन रहा था, और N14 का जो बैंड बन रहा था वो यहाँ बन रहा था। बट जो न्यूली सिंथेसाइज जो सिंथेसाइज हुए डीएनए तो उसका बैंड कहाँ बन रहा है दोनों के बीच में। तो इट मीन्स कि दिस इज द हाइब्रिड, कि ये क्या है हाइब्रिड है, कि हम ये तो कह रहे हैं कि इसके बाद जब रेप्लिकेशन हुआ जो न्यू स्ट्रैंड बने वो न्यू स्ट्रैंड कैसे है हाइब्रिड है। तो हमें कैसे पता चला हाइब्रिड है, तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगेशन जब हमने करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर तो जो बैंड मिले हमें तो वो कहाँ मिले हमें मिडिल में, कि ना तो वो N14 पे थे ना N15 पे थे, दोनों के मिडिल में थे। इट मीन्स कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या थे प्रेजेंट थे। अब नेक्स्ट जब हमने इसको आफ्टर 40 मिनट्स वापस रिमूव किया तो हमने देखा कि इसके अंदर कुछ तो हमें पहले मिले थे कुछ बाद में, और जो कुछ थे उनके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स हाइब्रिड थे। इट मीन्स कि जो हमारे N15 वाले भी डीएनए प्रेजेंट थे, N14 वाले भी प्रेजेंट थे, और जिसके अंदर N15 1 स्ट्रैंड N15 एंड 1 स्ट्रैंड N14 का था वो भी इसमें प्रेजेंट थे। नाउ ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन। की ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जो डीएनए से आरएनए का बनना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। कि ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चर, कि इसके अंदर दिस इज द प्रमोटर साइट व्हेन आरएनए पॉलीमरेज अटैच विद द प्रमोटर साइट। किस प्रमोटर साइट पे कौन आएगा आरएनए पॉलीमरेज। RNA polymerase attached with the promoter site. This promoter site is also called Tata box. Why this is called Tata box? Because
दिस बॉक्स इज रिच ऑफ AT, एडेनिन एंड थाइमिन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाटा बॉक्स एंड इट इज द प्रमोटर। और जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, यहीं से स्टार्ट होता है। एंड दिस इज द टर्मिनेटर, टर्मिनेटर की एंड है, जो टर्मिनेटर इट मीन्स एंड पॉइंट है यहाँ पे, कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड, की कोड ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कौन सा है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है। और ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन है जो वापस क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो इसके अंदर कि जो इन दिस प्रोसेस कॉपी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA टू RNA। तो ये क्या है, DNA से क्या हो रहा है, RNA का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो फर्स्ट है 3 स्टेप्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट इज इनिशिएशन, second is elongation and third is termination. In initiation, when RNA polymerase attach with the promoter site with the sigma factor, RNA polymerase है प्रमोटर साइट पे अटैच हो रहा है, किसकी हेल्प से, सिग्मा फैक्टर से, एंड इट स्टार्ट यानी RNA जो फॉर्मेशन है उसको स्टार्ट करेंगे और ये होगी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग पॉइंट, कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन, ये क्या कहला रहा है हमारा इनिशिएशन। एंड इलोंगेशन इट मीन्स कि ये जो इनिशिएशन पॉइंट है यहाँ से आगे मैसेंजर RNA क्या हो रहा है, फॉर्म होता जा रहा है, न्यू मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन होता जा रहा है। तो जो आगे चेन आगे बढ़ती जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन, की इलोंग होती जा रही है, चेन आगे से आगे बढ़ती जा रही है। एंड लास्ट इज टर्मिनेशन, की टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन की इसके अंदर इंपॉर्टेंट है रो फैक्टर। व्हेन रो फैक्टर अटैच विद द RNA पॉलीमरेज इट टर्मिनेट द मैसेंजर RNA, ये मैसेंजर फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA, ये क्या करेगा, मैसेंजर RNA के फॉर्मेशन को क्या करेगा, रोक देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्मिनेशन, कि यहाँ पे मैसेंजर RNA से रो फैक्टर अटैच हो गया, रो फैक्टर अटैच हो गया, तो जो टर्मिनेशन वाला प्रोसेस है वो क्या हो गया, रुक गया, ब्रेक डाउन हो गया, और जितना मैसेंजर RNA फॉर्मेशन होना था वो इतना मैसेंजर RNA का हमारा क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो इन यूकैरियोट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज एंजाइम। फर्स्ट इज RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट है, तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट से सिंथेसाइज होगा राइबोसोमल RNA एंड RNA पॉलीमरेज सेकंड सिंथेसाइज करेगी मैसेंजर RNA का, RNA पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज करेगी ट्रांसफर RNA का। ट्रांसफर RNA सिंथेसाइज फ्रॉम द RNA पॉलीमरेज थर्ड, मैसेंजर RNA पॉलीमरेज सेकंड एंड राइबोसोमल RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। तो मैसेंजर RNA जो है मैसेंजर RNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, मैसेंजर RNA क्या करेगा, टेम्पलेट प्रोवाइड कराएगा। एंड ट्रांसफर RNA ब्रिंग द एमिनो एसिड्स, ट्रांसफर RNA क्या करेगा, एमिनो एसिड्स को ब्रिंग करेगा। और राइबोसोमल RNA जो वो उसका क्या फंक्शन है, राइबोसोमल RNA का प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, कि ये जो अब हमने RNA पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनसे राइबोसोमल मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA का फॉर्मेशन तो हो गया। अब इनका क्या फंक्शन है, तो मैसेंजर RNA क्या प्रोवाइड करा रहा है, टेम्पलेट स्टैंड, किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। और ट्रांसफर RNA क्या कर रहा है, एमिनो एसिड्स को ब्रिंग कर रहा है। और राइबोसोमल RNA क्या करेगा, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिक रोल प्ले करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
इसमें जब मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन होता है तो कुछ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स की जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। तो दे आर नॉन फंक्शनल। इंट्रॉन्स क्या है? व्हाट इज इंट्रॉन्स? दे आर नॉन फंक्शनल यूनिट्स है। तो इन नॉन फंक्शनल यूनिट्स को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। कि स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के थ्रू हम एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स जो हैं मैसेंजर आरएनए में है, तो उन इंट्रॉन्स को जो नॉन फंक्शनल यूनिट है उनको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्प्लाइसिंग प्रोसेस कहलाएगा। और इसके अंदर जब एच चेन हेटेरोजेनस आरएनए है तो यूकैरियोट्स के अंदर मिथाइल ग्लूकोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड ये तो अटैच होगा 7 मिथाइल गुआनोसाइन। तो ये कौन सा होगा? ये तो कैपिंग होगी। 7 मिथाइल गुआनोसाइन की कैपिंग होगी और पॉली ए टेल बनेगी। पॉली ए क्या बनती है? एंड टेम्पलेट पे पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है। This is the genetic code. What is genetic code? तो genetic code it means relation of amino acid sequence which is present on polypeptide and base sequence in messenger RNA. What is genetic code? जो genetic code है वो है relation of amino acid sequence which is present on polypeptide and base sequence which is present in messenger RNA। तो ये क्या है हमारा जेनेटिक कोड। और दिस इज द फीचर ऑफ जेनेटिक कोड कि मेनली जेनेटिक कोड कितने हैं? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट एंड 61 कोडोन्स एमिनो एसिड्स एंड 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। कि 61 कोड्स जो क्या करेंगे? एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। वो कोडोन कौन कौन से हैं? UAG, UGA एंड UAA। दीज आर स्टॉप कोडोन। ये क्या है? स्टॉप कोडोन है। जो कुछ सम कोडोन्स हैं डीजेनरेट हैं कि इट मीन्स कि वो एक से ज्यादा एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। कि सम एमिनो एसिड्स आर कोडोन बाय मोर देन 1 कोडोन। कि पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड एक ही उसको कोड को करेगा। कि मतलब AUG है, AUG किसको कर रहा है? मेथियोनाइन स्टार्टिंग कोडोन है। अब ये AUG किसको कर रहा है? मेथियोनाइन अमीनो एसिड का कर रहा है। अब तो ये पर्टिकुलर कोड है तो ये पर्टिकुलर कोड को ही फॉर्म करेगा। तो बट कई बार ऐसा होता है कि एक एमिनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से फॉर्म होते हैं। तो दिस इज डीजेनरेट प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन। द कोडोन इज रीड इन मैसेंजर आरएनए कंटिन्यूस फैशन विदाउट एनी पंक्चुअल। कि भाई मैसेंजर आरएनए उसके अंदर हम क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए एज ए टेम्पलेट काम कर रहा है। ये देखो दिस इज द मैसेंजर आरएनए। ये किसमें? ट्रांसलेशन में एज ए टेम्पलेट क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो अब ये मैसेंजर आरएनए एज ए टेम्पलेट वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर एक तो ये मैसेंजर आरएनए है। अब जो भी कोडोन इसमें आते जाएंगे वो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए से क्या हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं। और जो कोडोन है यूनिवर्सल कोडोन कौन सा है? AUG। AUG क्या है? यूनिवर्सल कोडोन। दिस इज द MCQ क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूनिवर्सल कोडोन? तो AUG इज द यूनिवर्सल कोडोन। अब नाउ ट्रांसफर आरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ये स्ट्रक्चर किसका है? हमारा ट्रांसफर आरएनए का। तो ट्रांसफर आरएनए इज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कि स्पेसिफिक इसके अंदर एक स्पेसिफिक साइट होती है जो हर एमिनो एसिड को क्या करती है? कोड करती है। कि ये जैसे ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है?
कोडोन प्रेजेंट है, जैसे ये AGU, UCA, ये क्या है हमारा AGU, ये क्या है हमारा UCA, तो ये यहाँ पे क्या है कोडोन है। और ट्रांसफर आरएनए पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडोन, एंटीकोडोन प्रेजेंट है ट्रांसफर आरएनए पे। तो जैसे ही ये एंटीकोडोन कोडोन आपस में अटैच होंगे तो न्यू ये किसका करेंगे प्रोटीन का क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे। कि इसके अंदर ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं अमीनो एसिड्स का क्या पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉली जो अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन की एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड्स के अटैच हो रहा है, पॉलीमर चेन बना रहा है, और वो अटैच किससे हो रहे हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, कि एक अमीनो एसिड दूसरे से किससे अटैच हो रहा है, दिस इज द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और इसके अंदर जब ये हमारे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, इसके अंदर 2 स्टेप्स यूज में आते हैं, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए। कि जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जब ये जैसे ही ये ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, ये राइबोसोम है, कि ये हमारा राइबोसोम है, ठीक है, ये हमारा मैसेंजर आरएनए है। अब यहाँ पे 3 साइट्स प्रेजेंट है, दिस इज द ए साइट, दिस इज द पी साइट एंड दिस इज द ई साइट। ये वाली कौन सी साइट है ए साइट, ये पी साइट और दिस इज द ई साइट। तो व्हेन ट्रांसफर आरएनए, तो इन दिस साइट ए साइट ट्रांसफर आरएनए अटैच विद द अमीनो एसिड। इस ए साइट पे क्या हो रहा है ट्रांसफर आरएनए किससे अटैच हो रहा है एमिनो एसिड से। आफ्टर इट इज ट्रांसफर टू P site and elongation, where elongation is occur in P site, elongation is occur on the P site। जो polymerization of amino acids का हो रहा है वो कहाँ हो रहा है at the P site पे, और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किससे अटैच है विद द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो अटैच है। आफ्टर इट ट्रांसफर टू ई, ये किसको ट्रांसफर हो जाएंगे ई साइड को ये ट्रांसफर हो जाएंगे, और जैसे ही ई साइड को ट्रांसफर हो जाएंगे ये यहाँ से फिर क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे। तो जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ पी साइड पे। अब ये धीरे धीरे ऐसे आगे मूव होता रहेगा, कि यहाँ पे तो हमने एक कोडोन आ गया था, मतलब मान लो AUG यहाँ पे आ गया, तो इससे हमारे मिथ्योनाइन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे दूसरा कोडोन प्रेजेंट है, जैसे मान लो UAC प्रेजेंट है, तो अब ये UAC को कोड करेगा और UAC कोड होगा ये यहाँ पे अटैच होगा, UAC कोडोन है, ये UAC कोडोन है यहाँ पे। अब UAC से एंटी कोडोन आके अटैच होगा, एंटी कोडोन अटैच होगा, U का क्या हो जाएगा A का क्या हो जाएगा U और C का क्या हो जाएगा G, ठीक है। अब ये यहाँ पे AUG ये दूसरा कोडोन आके अटैच हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये कहाँ पे अटैच हुआ साइट A पे अटैच हुआ, यहाँ से इन्होंने क्या करा ये साइट कहाँ पे ट्रांसफर हो गए P साइट पे ट्रांसफर हो गए, यहाँ से फिर क्या हुआ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और नेक्स्ट फिर ये कहाँ पे हो गए ई साइट पे ट्रांसफर हो गए, और ई साइट से फिर क्या हो गया रिमूव हो गया। इस तरीके से हमारे ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है ट्रांसलेशन का। ये देखिए ये है हमारा ट्रांसलेशन का डायग्राम। अब इसके अंदर ये है हमारा मैसेंजर आरएनए, दिस इज द मैसेंजर आरएनए, ये हमारा क्या है मैसेंजर आरएनए, और ये क्या है हमारा राइबोसोम्स, कि ये जो येलो वाला है ये हमारा है राइबोसोम्स, और ये यहाँ पे सारे कोडोन प्रेजेंट हैं ऑन द मैसेंजर आरएनए पे, ऑल कोडोन्स प्रेजेंट है मैसेंजर आरएनए पे। अब सबसे पहले ये कोड यहाँ पे जैसे AAU, ये क्या है एक कोड है AAU। अब ये ट्रांसफर आरएनए है, इस ट्रांसफर आरएनए पे इस AAU का एंटीकोडोन प्रेजेंट है UUA। अब ये UUA यहाँ पे क्या आके अटैच हो जाएगा इससे, ठीक है, तो इससे अटैच होगा, और ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है ये एक आर्सेनिक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये किधर ये वाला देखो, अब यहाँ पे जो ये कोडोन था UCC
ठीक है, यूसीसी कोडोन था, ये हमारी है ई साइट, ये हमारी ए साइट और ये हमारी है पी साइट। ये हमारी ए साइट, ये पी साइट और ये है हमारी ई साइट। तो अब जो यूएए जो एंटी कोडोन है वो ट्रांसफर आरएनए का कहाँ पे आके अटैच हो गया, ए साइट पे आके अटैच हो गया इस कोडोन से। अब ये कोडोन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, पी साइड पे ट्रांसफर हो गया। ये देखो पी साइड पे ये ट्रांसफर हो रहे हैं इस तरीके से। अब ये पी साइड पे ट्रांसफर होके क्या कर रहे हैं, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करके एक चेन बना रहे हैं और ये एक अमीनो एसिड दूसरे से पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू अटैच है। अब ये पी साइड से कहाँ ट्रांसफर हो गए, ई साइड पे। ई साइड से ये क्या हो रहे हैं, फिर आगे रिमूव हो रहे हैं। अब फिर न्यू कोडोन आके अटैच होंगे, फिर ये पी साइड पे आएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलता रहता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा लैक ओपेरोन। इन लैक ओपेरन बेसिकली two main genes are present in lac operon, regulatory gene and structural gene. Structural gene are X, Y, Z या A, Y, Z anything else। कि यहाँ पे structural gene कौन से हमारा Y, Z and A और regulatory gene कौन सा है I। तो ये हमारा, और जो स्ट्रक्चरल जीन है वो फॉर्म करेंगे, जो जेड जीन कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, और इसके अंदर जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड, कि इसके अंदर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड के लिए। कि जो हमारा जेड है, व्हाट इज जेड, जेड इज अ स्ट्रक्चरल जीन और ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट्स गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। अब वाई किसको कोड करेगा, प्रीमियस को, और जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, परमिबिलिटी ऑफ सेल, किस सेल के लिए, सेल परमिबिलिटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो वाई कोड है वो रेस्पॉन्सिबल है सेल परमिबिलिटी के लिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ लैक ओपेरॉन। कि लैक ओपेरॉन बेसिकली क्या है, कि इसके अंदर लैक ओपेरॉन के अंदर ये है हमारा, ये है हमारे कौन से जीन है, ये है हमारा रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए और ये है हमारे सारे स्ट्रक्चरल जीन और ये है हमारा प्रमोटर जीन। ये वाला कौन सा है, ये है प्रमोटर जीन और ये है सारे स्ट्रक्चरल जीन। ये देखो, अब ये जो जेड है वो किसको फॉर्म करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, वाई प्रीमियस का और ए करता है ट्रांसलेशन ट्रांस एसिलरेट का, कि इस ट्रांस एसाइलेशन का, कि ये जो ए रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अब इसमें बेसिकली दिस इज द ऑपरेटर जीन। ये क्या है हमारा ऑपरेटर जीन, ये बेसिकली हमारा ऑपरेटर जीन है। अब इसके अंदर ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए है। व्हेन रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए अटैच विथ ऑपरेटर जीन, इसके अंदर लैक ओपेरोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक ओपेरोन, कि इट मीन्स कि लैक्टोज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द दिस प्रोसेस। लैक ओपेरोन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लैक्टोज। अब ये वाला जो यहाँ तक का पार्ट है, ये वाला है एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, कि ये किसकी एब्सेंस में है, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, कि यहाँ पे क्या है, लैक्टोज क्या है प्रेजेंट और यहाँ पे क्या है, लैक्टोज एब्सेंट। अब व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए अटैच विद द ऑपरेटर जीन
and when it attach with the operator gene, structural gene doesn't जो secrete these beta galactoside, primase, trans acylitase, कि ये सब इसका secretion नहीं करेंगे। कि जब लैक्टोज एब्सेंट है तो जो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए है वो ऑपरेटर जीन से अटैच हो जाएगा। ऑपरेटर जीन से अटैच हो जाएगा तो ये सारे स्ट्रक्चरल जीन अपना फंक्शन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है जब लैक्टोज प्रेजेंट है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, तो जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये जो लैक्टोज प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में है, इंड्यूसर, कि जो लैक्टोज किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, इंड्यूसर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये देखो ये है हमारा इंड्यूसर, इस फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज। तो व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूसर, तो नाउ रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए अटैच विद द इंड्यूसर। रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए किससे अटैच हो जाएगा, इंड्यूसर से अटैच हो जाएगा। व्हेन इंड्यूसर अटैच विद द रिप्रेसर आरएनए, नाउ ऑपरेटर जीन गिव अ कोड या गिव अ मैसेज दैट स्ट्रक्चरल जीन्स वो क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को कंटिन्यू करते रहे। इट मीन्स कि जब इंड्यूसर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था तो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए किससे अटैच हो गया, ऑपरेटर जीन से अटैच हो गया। तो इससे स्ट्रक्चरल जीन्स ने अपना फंक्शन नहीं किया। और जब यहाँ पे जो ये लैक्टोज जब यहाँ पे प्रेजेंट है इंड्यूसर की फॉर्म में, तो जो मैसेंजर आरएनए से ऑपरेटर जीन अटैच हो रहा था उस कंडीशन में कौन अटैच हो गया, इंड्यूसर अटैच हो गया। तो अब ये इंड्यूसर अटैच होने से ये कैसे किस फॉर्म में हो गया, इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया। ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए किस में हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में हो गया। तो इनएक्टिव फॉर्म में होने से ये जो जितने भी स्ट्रक्चरल जीन थे उन्होंने अपना फंक्शन करना क्या करा, स्टार्ट कर दिया। तो इससे बीटा गैलेक्टोसाइड बन गया, इससे परमिएज बन गया, इससे ट्रांस एसिलाइटेज बन गया। तो ये जो इस तरीके से लैक अकोरेंट मॉडल है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमने चैप्टर 6 का रिवीजन किया, एक शॉर्ट रिवीजन किया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।